بنانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق کمیٹی پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو 200 یونٹس تک محدود رکھے یا 300 یونٹ تک ریلیف دینے پر رپورٹ تیار کرے گی۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری 201 یونٹس کے بجائے 301 یونٹ تک کرنے کی تجویز زیر غور ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں 201 یونٹس پر اضافی بل کا یہ معاملہ ہے۔ حکومت کا پروٹیکٹڈ صارفین کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو 200 یونٹ تک محدود رکھنے یا 300 یونٹ تک ریلیف دینے پر رپورٹ تیار کرے گی۔ اس بارے تفصیلات کے لیے بات کریں گے فہد امین سے۔ جی فہد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے صارفین جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ 201 یونٹس پر انہیں جو ہے وہ اضافی بل بھجوایا جاتا تھا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے معاملے کی وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ شکایات کا نوٹس لے لیا ہے، اور 201 یونٹس کے معاملے پر جو ہے وہ پروٹیکٹڈ صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 201 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین 6 ماہ تک جو ہے وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرنے کا معاملہ۔ چینی کا ریٹ اور مطلوبہ معیار نہ ہونے پر ٹینڈر منسوخ کر دیے گئے۔ چینی درآمد کرنے کے لیے 4 کمپنیوں نے بولی جمع کروائی تھی۔ لندن، سوئٹزرلینڈ اور UAE کی کمپنیوں نے بولیاں جمع کروائی تھیں۔ ٹریڈنگ کا کارپوریشن آف پاکستان نے ٹینڈر منسوخی سے متعلق فیصلہ دے دیا۔ مزید جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے گا۔ دیکھیے، چینی کا معاملہ ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ اب چینی کا بحران بھی چل رہا ہے۔ پہلے ملک سے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی منگوانے کا معاملہ تھا۔ چینی کا ریٹ اور مطلوبہ معیار نہ ہونے پر ٹینڈر منسوخ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ چینی درآمد کرنے کے لیے 4 کمپنیوں نے بولی جمع کروائی۔ چینی درآمد کرنے والی کمپنیوں میں لندن، سوئٹزرلینڈ اور متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں نے بولی جمع کروائی، جس میں لندن کی کمپنی نے $539 فی ٹن، دوسری کمپنی نے $567 اور متحدہ عرب امارات کی کمپنی نے $599 کا ریٹ کوٹ کیا۔ بولی دینے والی کمپنیوں کے حساب سے پاکستان میں چینی کی کم از کم فی کلو ریٹ چینی کا $227 تک دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دفعہ بڑھائی گئی بولیوں پر ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا ہے، جس میں بولی منظور والی کمپنیوں کے ٹینڈر منسوخ کیے گئے ہیں۔ مارکیٹ میں چینی کی سپلائی اس وقت بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ڈیلر ایسوسی ایشن کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں یومیہ 1500 ٹن چینی کی ضرورت ہے، جس کے بعد گرام فروشی بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے چینی کے حوالے سے کریک ڈاؤن بھی کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کا اسے منگوانی تھی، جس پر ٹینڈر منسوخی کا معاملہ ہے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ اس وقت جو کمپنی ہے ان کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اور مطلوبہ ہدف مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ٹینڈر منسوخ کیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ کا شکریہ۔ اور وقت ہوا ہے بریک کا، اس سے پہلے بل کے تحت پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ بل کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ حلقہ بندیوں میں ضلع انتظامیہ الیکشن کمیشن کو مدد دے گی۔ ایک UC سے 9 ممبر منتخب ہوں گے۔ منتخب ممبرز کو 1 ماہ میں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہوگا۔ مزید جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا یہ معاملہ ہے۔ لوکل گورنمنٹ بل 2025 قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ پنجاب اسمبلی نے منظور کر لیا ہے، جبکہ یہ بل جو ہے پنجاب اسمبلی میں اجلاس میں پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے۔ جبکہ اگر میں بتاؤں تو حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب اس سال دسمبر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی خواہاں ہے۔ جبکہ اگر میں بل کی تفصیلات بتاؤں تو بل کے تحت پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام متعارف کروایا جائے گا۔ بل کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، جبکہ حلقہ بندیوں میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کرے گی۔ جبکہ نئی ترامیم کے بعد یونین کونسل میں وارڈ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک یونین کونسل سے 9 ممبر منتخب ہوں گے۔ جبکہ منتخب ہونے والے ممبرز کو 1 ماہ کے اندر سیاسی جماعت میں شمولیت کرنی ہوگی۔ جبکہ 9 منتخب ہونے والے ممبرز اپنا چیئرمین اور وائس چیئرمین خود چنیں گے، جبکہ چیئرمین کے انتخابات اب نہیں ہوں گے۔ جبکہ 9 منتخب ہونے والے ممبرز ریزرو سیٹوں پر ممبرز بھی خود چنیں گے۔ جبکہ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کی تجویز پر DC کو ضلع کمیٹیوں کے چیئرمین بنانے والی متنازع شکل میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے۔ ضلع کمیٹیوں کے چیئرمین عوامی نمائندے ہوں گے، جبکہ DC شریک چیئرمین ہوں گے۔ جبکہ اس کا میں آپ کو احوال بتاؤں تو اس سے پہلے حکومت پنجاب نے لوکل گورنمنٹ بل 2025 میں ضلعی کمیٹیوں کا چیئرمین DC کو تعینات کرنے کی تجویز کی تھی، جبکہ ترمیم پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کی متفقہ تجویز پر کی گئی ہے۔ جبکہ آبادی کے حساب سے سب سے بڑی مقامی حکومت کا ہیڈ 6 ماہ کے لیے ضلعی کمیٹیوں کا چیئرمین ہوگا، جبکہ 6 ماہ کے بعد آبادی کے حساب سے دوسری بڑی
मुकामी हुकूमत का हेड ज़िलाई कमेटियों का चेयरमैन होगा। जबकि इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट बिल पर हफ्तावार जो है वो हफ्ते में हफ्तावार शिकवार ब्रीफिंग जारी रही, जिसके बाद मुतअद्दिद इजलासों के बाद इस बिल को मंजूर किया गया। जबकि आप बिल की मंजूरी के बाद इसको पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश किया जाएगा। जबकि पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद इस बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर देंगे। जबकि ये बिल मंजूर होने के बाद बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जो है शुरू की जाएंगी और नए हल्का बंदियों के बाद बाकायदा बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाएगा। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। पंजाब में हालिया बारिशों से 50 से ज़ायद मकामात पर छतें गिरने के वाक़यात हुए। महकमा हाउसिंग का खस्ता हाल, छतों की मरम्मत के ख्वाहिशमंद शहरियों की मदद का फैसला। मरम्मत के लिए 3 से 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम करने की तजवीज़ दी गई है। कर्ज की फराहमी के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवाने का मनसूबा भी बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद मनसूबे पर अमल दरामद शुरू होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, इस बारे आगाह कीजिए। पंजाब में हालिया बारिशों से 50 से ज़ायद मुकामात पर छतें गिरने के वाक़यात रूनुमा हुए। खस्ता हाल छतें गिरने से कई कीमती जानों का भी ज़िया हुआ। कई शहरी माली मुश्किलात के बाइस खस्ता हाल छतों की मुरम्मत नहीं करवा सके। अब पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर मंसूबे में बड़ी तब्दीली का जो प्लान है वो उस पर गौर करना शुरू कर दिया है कि महकमा हाउसिंग ने खस्ता हाल छतों की मुरम्मत के लिए ख्वाहिशमंद शहरियों की मदद करने का भी फैसला किया है। मुरम्मत के लिए 3 से 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। कर्ज की फराहमी के लिए ऑनलाइन पोर्टल मुतारफ करवाने की मनसूबाबंदी भी की गई है। दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के बाद मुस्तहिक शहरियों को कर्ज दिया जाएगा और खस्ता हाल छतों वाले घरों के मालिकान को माली मदद दी जाएगी। इसी तनाजुर में महकमा हाउसिंग ने मनसूबे की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल करने का फैसला किया है और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद इस मंसूबे पर बाकायदा अमल दरामद शुरू होगा। बिला सूद कर्ज से गरीब शहरी महफूज छत हासिल कर सकेंगे। इस मंसूबे का मकसद हादसात से इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में अब मुरम्मत के लिए ये कर्ज भी शामिल होगा। 3 से 5 लाख रुपए का कर्ज एक साथ में वापस करना होगा। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। सार्फिन के केसेस पंजाब की सेशन अदालतों को मुंतकिल कर दिए। चीफ जस्टिस की सार्फिन के केसेस की तरजीही बुनियादों पर समाअत की हिदायत। सारिफ अदालतों के ख़त्म होने पर केसेस को सेशन अदालतों में मुंतकिल किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा। इशफाक, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी और यकीनी बनाने के साथ साथ वकला की फलाह के लिए भी इकदाम तो कर रही हैं, लेकिन इंतजामी सतह पर भी चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम इनकलाबी इकदाम का सिलसिला जारी रखे हुए है। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने से मुतल्लिक बड़ा फैसला किया है। और तो कंज्यूमर कोर्ट खत्म होने के बाद पंजाब भर की सेशन अदालतों में कंज्यूमर कोर्ट से जो केसेस थे उन तमाम केसेस को ट्रांसफर कर दिया गया है और ये भी हुक्म दिया गया है कि इन केसेस की तरजीही बुनियादों पर समाअत की जाए। पंजाब भर की 17 कंज्यूमर कोर्ट खत्म होने से पंजाब हुकूमत को कौमी खजाने को 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और इस हवाले से चीफ जस्टिस के जो इकदाम हैं उस पर वकला ने जबरदस्त राजद यकीन पेश किया। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। टाउनशिप और ग्रीन टाउन की समाजी और सियासी शख्सियात की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। वफ्द के शुरका ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। गवर्नर सरदार सलीम खान हैदर कहते हैं लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ है और इसको दोबारा मुतहरिक करना मेरी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो अपने वर्कर्स को इज्जत देती है। आपको अपडेट कर रहे हैं, टाउनशिप और ग्रीन टाउन की समाजी और सियासी शख्सियात की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है। वफ्द के शुरका ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ है और इसे दोबारा मुतहरिक करना मेरी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो अपने वर्कर्स को इज्जत देती है। टाउनशिप और ग्रीन टाउन की समाजी और सियासी शख्सियात की गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है। वफ्द के शुरका ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि लाहौर पीपल्स पार्टी का गढ़ है और इसको दोबारा मुतहरिक करना मेरी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो अपने वर्कर्स को इज्जत देती है।
آپ کو بتائیں ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن کی سماجی اور سیاسی شخصیات کی گورنر پنجاب سے ملاقات ہوئی. وفد کے شرکاء نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. گورنر سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ لاہور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. کمشنر زید بن مقصود اپنے عہدے سے سبکدوش. کمشنر لاہور نیشنل سیکیورٹی وار کورس نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں شرکت کریں گے. ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کو کمشنر لاہور ڈویژن کا ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ہے. زید بن مقصود نے تمام آفیسز میں جا کر افسران اور اہلکاروں سے الوداعی ملاقات کی ہے. تفصیلات کے لیے بات کریں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے. جی عمران، آگاہ کیجیے اس بارے. دیکھیں 2024 اپریل میں کمشنر لاہور نے چارج لیا اور کمشنر لاہور زید بن مقصود پاکستان ایڈمنسٹریشن سروس کے 20ویں گریڈ میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے ہیں. کمشنر لاہور ڈویژن نے 15 ماہ جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھائیں اور لاہور ڈویژن کے لیے، اور اس وجہ سے کمشنر لاہور ڈویژن زید بن مقصود نے سیکورٹی وار فورس اور ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں جو ہے اس کو اٹینڈ کریں گے، اور اس کورس کے لیے ان کو الوداع کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کو کمشنر لاہور ڈویژن کا ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ہے. زید بن مقصود سابقہ کمشنر لاہور نے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد تمام آفیسز میں جا کر افسران اور اہلکاروں سے الوداعی ملاقات بھی کی ہے اور باقاعدہ طور پر اپنا چارج بھی چھوڑ لیا ہے. جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ. وارننگ نوٹسز جاری ہوئے مگر ایل ڈی اے افسران نے روش نہ بدلی. افسران نے دفاتر میں تاخیر سے آنا معمول بنا لیا. ایل ڈی اے میں بایو میٹرک کے ذریعے حاضری لگانا سسٹم غیر فعال. بر وقت دفاتر پہنچنے پر ایل ڈی اے افسران عمل پیرا نہ ہو سکے. ٹاؤن پلاننگ کے ڈائریکٹرز اور ہاؤسنگ کے ڈائریکٹرز بھی بر وقت دفاتر نہ آئے. مزید جان لیتے ہیں زین العابدین سے. زین بتائیے گا. ایل ڈی اے کے آفیسرز کو بارہا وارننگ نوٹسز بھی جاری ہوئے مگر ایل ڈی اے افسران نے اپنی روش نہ بدلی. ایل ڈی اے آفیسرز نے دفاتر میں تاخیر سے آنا معمول بنا لیا ہے. بایو میٹرک کے ذریعے حاضری لگانے کا سسٹم غیر فعال ہے، لہٰذا بر وقت دفاتر پہنچنے کے حوالے سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اس پر ایل ڈی اے آفیسرز عمل پیرا نہیں ہیں. ڈی جی ایل ڈی اے نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے صبح 9 بجے تمام آفیسرز کو دفاتر پہنچنے کا محکمانہ حکم نامہ جاری کیا، لیکن ڈی جی ایل ڈی اے کی غیر موجودگی میں ایل ڈی اے کے بیشتر آفیسرز بر وقت حاضری کے حوالے سے غیر سنجیدہ رویہ اپنا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایل ڈی اے کے ایڈیشنل جو ڈائریکٹر جنرلز ہیں وہ بھی آج دفاتر وقت پر نہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ سینئر ڈائریکٹرز اور دیگر افسران نے بھی بر وقت دفاتر کا رخ نہیں کیا. جو سروے کیا گیا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ایل ڈی اے کے شعبہ چیف میٹروپولیٹن پلاننگ کا دفاتر میں لیٹ آنا معمول ہے. اسی طرح ٹاؤن پلاننگ کے ڈائریکٹر اور ہاؤسنگ کے ڈائریکٹرز بھی آج بر وقت دفاتر نہیں آئے. اس معاملے پر ایڈیشنل ڈی جی ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہے اور تاخیر سے آنے والے تمام افسران کو وارننگ نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ. پولیس کے ہراساں کرنے کے خلاف شہری کی درخواست پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ نے آر پی او ساہیوال کو 10 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے. خاتون کے لاہور آنے جانے کا پتہ چلا ہے. خاتون فرحین بی بی کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. سرکاری وکیل کا یہ موقف ہے. ویڈیو اگر درست ہوئی تو معاملہ جلد حل ہو سکتا ہے. چیف جسٹس مثالیہ نیلم کے یہ ریمارکس تھے. آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے. پولیس کے ہراساں کرنے کے خلاف شہری کی درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے. ہائی کورٹ نے آر پی او ساہیوال کو 10 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. آپ کو بتائیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن آفس میں حج 2026 کی قراردادی کی تقریب ہوئی. ایم ڈی پی ایف شاہد فرید کی تقریب میں خصوصی شرکت. سبجیکٹ اسپیشلسٹ سہرش لطیف اور ایم ای او محمد رمضان حج کی سعادت حاصل کریں گے. مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. عاطف بتائیے گا. عاطف سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن آفس میں حج 2026 کی قراردادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. ایم ڈی پی ایف شاہد فرید کی تقریب میں خصوصی شرکت. سبجیکٹ اسپیشلسٹ سہرش لطیف اور ایم ای او محمد رمضان حج کی سعادت حاصل کریں گے. ایم ڈی پی ایف کی کامیاب ملازمین کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن آفس میں حج 2026 کی قراردادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. دورہ آسٹریلیا پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم لاہور سے روانہ. محمد عرفان خان کی قیادت میں 15 رکنی اسکواڈ ٹاپ اینڈ T20 ٹورنامنٹ کے لیے کھیلے گا اور 11 ٹیموں کا ٹورنامنٹ 14 سے 24 اگست تک ڈرون میں کھیلا جائے گا. شاہینز کا پہلا میچ 14 اگست کو بنگلہ دیش اے سے ہوگا.
तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, इस बारे आगाह कीजिए। दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान शाहीन्स ऑस्ट्रेलिया के सिटी डार्विन के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम लाहौर से रवाना होगी। मोहम्मद इरफान खान की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड टॉप एंड T20 टूर्नामेंट खेलेगा। 11 टीमों का टूर्नामेंट 14 से 24 अगस्त तक डार्विन में खेला जाएगा। शाहीन्स का पहला मैच 14 अगस्त को बांग्लादेश में होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, दौरा ऑस्ट्रेलिया है। पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम लाहौर से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गई है। मोहम्मद इरफान खान की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड टॉप एंड T20 टूर्नामेंट खेलेगा। 11 टीमों का टूर्नामेंट 14 से 24 अगस्त तक डार्विन में खेला जाएगा। शाहीन्स का पहला मैच 14 अगस्त को बांग्लादेश ए के खिलाफ होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम लाहौर से रवाना हो गई है। मोहम्मद इरफान खान की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड T20 टूर्नामेंट खेलेगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइए इस बारे। पाकिस्तान शाहीन्स का स्क्वाड है। उसामा से राबता मुनक़ता हुआ है। आपको बता रहे हैं, दौरा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम लाहौर से रवाना। मोहम्मद इरफान खान की क़यादत में 15 रुकनी स्क्वाड टॉप एंड T20 टूर्नामेंट खेलेगा। लहसुन 380, अदरक 580 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। केला 250 रुपये का दर्जन, पपीता 580, सेब 400, आड़ू और खुबानी 380, आम 350 रुपये किलो में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 562 रुपये पर आ गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल, आज अगर सरकारी रिलीज़ों पर जो सब्ज़ियाँ, फल और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें का तयन किया गया, उन पर बात की जाए तो सब्ज़ियों की रिलीज़ में आज मजमूई तौर पर 4 सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। एक बार फिर जो है टमाटर की कीमत में जो है वो इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। 5 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है, मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 10 रुपये महंगा करके 470 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में अदरक 550 से 580 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का जो अदरक है उसकी कीमत जो है वो ज़ायद ही वसूल की जा रही है। इसी तरह दीगर सब्ज़ियाँ, जिसमें खीरा 5 रुपये महंगा करके 95 रुपये मुकर्रर किया गया है। इसी तरह फूल गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और जो फलों की सरकारी रिलीज़ है उसमें 2 फल मजमूई तौर पर महंगे किए गए हैं। सेब गाचा 10 रुपये महंगा करके 295 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। आड़ू 10 रुपये इजाफे के बाद 290 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। पोल्ट्री मसनूआत की रेट लिस्ट में जो ब्रायलर है उसकी कीमत में 7 रुपये कमी की गई है और 562 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में कीमत है। और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा, आज मज़ीद 1 रुपया बढ़ाकर 283 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। तमाम कीमतें जो हैं सरकारी रिलीज़ों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में जो दर्जा अव्वल की अशिया हैं उनकी कीमतें कुछ और हैं और जो मिक्स दर्जे की अशिया हैं वो कीमतें कुछ और वसूल की जा रही हैं। महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त मार्केट में अशिया खुरोनोज की कीमतें जो हैं वो ओवर चार्ज की जा रही हैं, यानी कि ज़ायद कीमतें जो हैं वसूल की जा रही हैं, जो कि सरकारी रिलीज़ों के बरक्स जो है वो फ़रोख्त मामूल बन चुका है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 369 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब भर से 60 अफराद गिरफ्तार, 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 288 अफराद को जुर्माने किए गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की ज़ेर सदारत इजलास डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में आम मार्केट में चीनी स्टॉक की फराहमी में वाज़े बेहतरी आई है। आपको बता रहे हैं, चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 369 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंजाब भर से 60 अफराद गिरफ्तार, 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 288 अफराद को जुर्माने किए गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की ज़ेर सदारत इजलास डॉक्टर एहसान भुट्टा बोले, गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में आम मार्केट में चीनी स्टॉक की फराहमी में वाज़े बेहतरी आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है। पीडीएमए ने मानसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रावलपिंडी 26, अटक 20, सियालकोट, गुजरात, मरी और रावलपिंडी में 1 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक 8 से 12 अगस्त के दौरान
मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। आपको बता रहे हैं PDMA ने मानसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रावलपिंडी 26, अटक 20, सियालकोट, गुजरात, मरी और रावलपिंडी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 8 से 12 अगस्त के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रावलपिंडी 26, अटक 20, सियालकोट, गुजरात, मरी और रावलपिंडी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अवामी सहूलत और फूड सेफ्टी के नए दौर का आगाज़। बरकत मार्केट में PFA हाउस की तामीर के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की CNW और LDA हुकाम से मुलाकात। बिल्डिंग के डिज़ाइन, अखराजात और तामीराती मयार पर तफसीली मुशावरत की गई। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से अवामी सहूलत और फूड सेफ्टी के नए दौर का आगाज़। बरकत मार्केट में PFA हाउस की तामीर के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की CNW और LDA हुकाम से मुलाकात हुई। बिल्डिंग के डिज़ाइन, अखराजात और तामीराती मयार पर तफसीली मुशावरत की गई है। अवामी सहूलत और फूड सेफ्टी के नए दौर का आगाज़ किया गया है। बरकत मार्केट में PFA हाउस की तामीर के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की CNW और LDA हुकाम से मुलाकात हुई। बिल्डिंग के डिज़ाइन, अखराजात और तामीराती मयार पर तफसीली मुशावरत की गई। PPSC के तहत मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लीगल अफेयर्स की एक असामी पर 142 उम्मीदवार कामयाब। डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस की भी एक असामी पर 38 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। आपको बता रहे हैं PPSC के तहत मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लीगल अफेयर्स की एक असामी पर 142 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। डायरेक्टर एडमिन और फाइनेंस की भी एक असामी पर 38 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लीगल अफेयर्स की एक असामी पर 142 उम्मीदवार कामयाब। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, इस बारे आगाह कीजिए। आतिफ, अगर सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। आतिफ से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं PPSC के तहत मुख्तलिफ महकमों की असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान किया गया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लीगल अफेयर्स की एक असामी पर 142 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। डायरेक्टर एडमिन और फाइनेंस की भी एक असामी पर 38 उम्मीदवार कामयाब। आपको बताएं CCPO की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन्स का कारकर्दगी इजलास। 14 अगस्त उर्स हज़रत उस्मान अली हजवेरी और शहलम हज़रत इमाम हुसैन के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। बोले 14 अगस्त के मौके पर वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि CCPO की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन्स का कारकर्दगी इजलास हुआ है। 14 अगस्त उर्स हज़रत उस्मान अली हजवेरी और शहलम हज़रत इमाम हुसैन के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत की गई। बोले 14 अगस्त के मौके पर वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग की रोकथाम यकीनी बनाई जाए। CCPO की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन का कारकर्दगी का इजलास हुआ। 14 अगस्त उर्स हज़रत उस्मान अली हजवेरी और चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में हर वर्कर करप्शन का नया स्कैंडल सामने आ रहा है। सूबे के 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों दिए गए हैं। जाली सादिक और अमीनों की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। चेले खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने को ख़ानदानी वरासत समझकर लूट मार कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के मंसूबे आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल हो रहे हैं। आपको बता रहे हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज़ करप्शन का नया स्कैंडल सामने आ रहा है। सूबे के 5 अजला में सोना निकालने के ठेके औने पौने दामों दिए गए हैं। जाली सादिक अमीनों की करप्शन अरबों रुपए से शुरू होती है। चेले खैबर पख्तूनख्वा के ख़जाने को ख़ानदानी वरासत समझकर लूट मार कर रहे हैं। आपको बताएं माउन खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के वफ्द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के EWR सिस्टम बारे तबादला ख्याल किया गया। मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात तैयार करने पर इतफाक।
वफ्द का पंजाब हुकूमत की EWR सिस्टम में शराकत दारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। आपको अपडेट कर रहे हैं माउन खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के वफ्द की मुलाकात हुई है। पंजाब हुकूमत की EWR सिस्टम बारे तबादला ख्याल किया गया। मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात तैयार करने पर इतफाक। वफ्द का पंजाब हुकूमत की EWR सिस्टम में शराकत दारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। खबर दे रहे हैं आपको मावन खसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा बट से ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के वफ्द की मुलाकात हुई है।